चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं इंदौर की, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि आज कई महत्वपूर्ण इवेंट जो है वो आज मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। I congratulate you for organizing this mega event and CII नजर आ रहे हैं मोहन यादव और उनके साथ यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद है। sir of our full support. With this, I conclude my remarks and I hope today's session will further enhance the industrial journey of Madhya Pradesh. धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और चलिए आपको लिए चलती हूँ GIS के एक सुनहरे सफर की ओर। एक छोटे से प्रस्तुतिकरण के माध्यम से हम GIS के सफर को देखते हैं। If you seek a land wherein finite possibilities meet boundless opportunities, if you see the nation's largest solar and hydropower plants exist alongside one another on Narmada River, if you're passing through Asia's longest high-speed automotive testing track, if you find more than 300 pharma and medical devices or medtech companies in one land and medicines being exported to 160 countries, if you witness a thriving agricultural ecosystem that produces 27% of India's organic crops and as many as 11 agroclimatic zones, which is the highest in the nation. If you're exploring a vast industrial land bank of more than 1 lakh acres, if you're not facing land and labor issues at all, if you're finding ample raw material for cotton, silk and man-made fiber, if you meet talent from India's first Global Skills Park, IIT, IIM, NID, NIFT, MANET and many prestigious institutions near you, if you have access to multiple airstrips and 6 world-class airports for connectivity and doing business with ease, if you see a defense hub emerging, if natural resources are in abundance and readily available at your factory's doorstep, if you're awed by World Heritage Sites, wildlife around you, and blessed by spiritual, divine destinations symbolizing India's timeless traditions. If you're looking to expand your business in an ecosystem that offers unparalleled ease and comprehensive support from the government, if you experience dynamic leadership and investor-centric policies creating an ecosystem for the next industrial revolution, when you find infinite possibilities align in one place, you know you are in Madhya Pradesh, the heart of India. Welcome to the 8th Global Investors Summit 2025, Bhopal, Madhya Pradesh, where global visionaries, policymakers, and industry leaders will converge for 2 power-packed days. Engage directly with Chief Minister Dr. Mohan Yadav, who is committed to realizing the Honorable Prime Minister Narendra Modi's vision of a developed nation. The summit transcends boundaries with groundbreaking collaborations and strategic partnerships that drive global investment and innovation. From celebrating our heritage to building a sustainable tomorrow. आप आइए और आपको अगर पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। If you're looking to discover and embrace infinite possibilities of growth, we invite you to join us at the Invest Madhya Pradesh Global Investors Summit 2025 in Bhopal on the 24th and 25th February. ये था हमारा GIS का सुनहरा सफर। मेरे मीडिया भाई बंधु जो फोटोग्राफ्स ले रहे हैं उनसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप फोटोग्राफ लेकर थोड़ा पीछे हो जाएं ताकि हमारे जो पीछे उद्यमी बैठे हैं उनको देखने में सुविधा हो। मेरा ये आपसे करबद्ध सादर अनुरोध रहेगा। और अब हम सादर आमंत्रित कर रही हूँ
प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग आदरणीय राघवेंद्र कुमार सिंह सर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 की तरफ क्या तैयारियां हैं, आप कृपया हम सभी को अवगत कराएं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम में मंचासीन कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री तुलसी सिलावट जी, श्री शंकर लालवानी जी माननीय सांसद इंदौर, श्रीमती कविता पाटीदार जी माननीय सांसद राज्यसभा, श्री पुष्यमित्र भार्गव जी माननीय महापौर नगर निगम परिषद इंदौर, माननीय विधायकगण श्री रमेश मेंदोला जी, श्रीमती मालिनी गौड़ मैडम, श्री गोलू शुक्ला जी, श्री महेंद्र हाडिया जी, मैडम उषा ठाकुर, श्री मनोज पटेल जी, श्री मधु वर्मा जी, श्री सुमित मिश्रा जी, श्री श्रवण सिंह चावड़ा जी, सिद्धार्थ सेठी जी अध्यक्ष CII मालवा इन्फोबीन्स लिमिटेड के चेयरमैन, यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम में हमारे पधारे हुए अतिथिगण, माननीय उद्योगपतिगण, मीडिया के हमारे बंधु और माननीय जनप्रतिनिधिगण, एक छोटे से प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अपनी बात में कहना चाहूँगा। शुरुआत इस बात से मैं करना चाहता हूँ कि विकसित भारत का संकल्प पूरे देश भर का है और हमें इसमें मार्गदर्शन माननीय प्रधानमंत्री जी का मिल रहा है। विकसित भारत के साथ उसी के एक सबसेट के रूप में विकसित मध्य प्रदेश का स्वप्न माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में समस्त मध्य प्रदेश वासियों का है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आप सबको राजा भोज की नगरी में जब देश के गौरव, जो विश्व पटल पर जिस व्यक्ति की पहचान हो, उनके कर कमलों द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन होने वाला है और इस विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश की बुनियाद रखने का पवित्र काम आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में होने वाला है। मैं फिर से आप सबको जो संकल्प लेकर मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री का विश्वास आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मैं सोचता हूँ आप सबके आशीष से ये समिट एक नया इतिहास लगेगी। फिर से आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, और सम्मान पूर्वक आमंत्रित कर रही हूँ नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को कि आज के इस अवसर पर हम सभी को अपने उद्बोधन से कृतार्थ करें। आपकी तालियों की गूंज के बीच आप सादर आमंत्रित हैं। बोलिए भारत माता की। आवाज आना चाहिए जरा अच्छी, कॉन्फिडेंस वाली। बोलिए भारत माता की। ठीक है। मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और आदरणीय मंच, क्योंकि आपके और मोहन जी के बीच में ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता, उपस्थित इंदौर शहर की आन बान शान सभी उद्योग जगत के प्रतिष्ठित बंधुओं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आप जानते हैं कि पिछले, क्यों रे भाई यहाँ तिकड़ी क्यों फोड़ रहा है यार तू? मैं पिछले अनेक वर्षों से मंत्री हूँ, उद्योग मंत्री भी रहा, तो गर्व है कि इन्होंने पुराना एस्टेब्लिशमेंट तो है इनका, नया IT पार्क और बना दिया और लगभग 400-500 लोगों को रोजगार और देने का काम किया। तो ये मध्य प्रदेश में संभावनाएं बहुत है और इंदौर में तो बहुत ही ज़्यादा संभावना है और इससे अनुकूल वातावरण कभी नहीं आ सकता। मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, इतना अनुकूल वातावरण है इन्वेस्टमेंट के लिए कि मुख्यमंत्री जी तत्काल निर्णय लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि निर्णय और उस निर्णय का एग्जीक्यूशन होता है, तत्काल एग्जीक्यूशन होता है। मैं आप बता रहा हूँ कि आज स्वास्थ्य की पॉलिसी आई, उन्होंने रोक दी और उसी वक्त उस पर परिवर्तन करके वो पॉलिसी जारी कर दी। ये काम करने का तरीका है मुख्यमंत्री जी का। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब देखिए, आप हमारे
हमारे हैं, आप अपने हैं, पर आप इस सरकार के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आप जब किसी से बात करेंगे तो कहेंगे कि मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बहुत अच्छा प्रदेश है। ये जो आपकी कही हुई बात निश्चित रूप से यहाँ पर निवेश लाएगी और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस इन्वेस्टमेंट मीट के अंदर अपनी महती भूमिका अदा करेंगे। मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूँ और आप सबका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। इंदौर में आप सभी को आमंत्रण देने पधारे हैं। वे अपने वक्तव्य के माध्यम से आप सभी को आमंत्रित करेंगे, लेकिन हम प्रतीकात्मक रूप से आप सबके प्रतिनिधि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से संस्थापक इम्पेटस संजीव अग्रवाल जी को यह प्रतीकात्मक इनविटेशन कार्ड भेंट करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगी संजीव अग्रवाल जी से कि कृपया वे मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और सम्मानीय मंच से अनुरोध करूंगी कि प्रतीकात्मक रूप से हमारा ये आमंत्रण पत्र इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का यह आमंत्रण आप संजीव अग्रवाल जी को पूरे उद्यमियों के प्रतिनिधि के रूप में भेंट करें। जोरदार तालियों की गूंज से इस आमंत्रण पत्र का आप भी स्वागत करें, वंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कृपया अपना स्थान पुनः ग्रहण करें। इंदौर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, भारत के स्मार्ट शहरों में इंदौर शुमार है। अपनी जीवन संस्कृति, तेजी से बढ़ते अर्थव्यवस्था और रणनीतिक स्थान के लिए जाना जाने वाला इंदौर न केवल ऐतिहासिक महत्व का शहर है, बल्कि एक आधुनिक निवेश का केंद्र भी है। मध्य प्रदेश का निवेश केंद्र इंदौर मजबूत आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास, रोजगार वाला अवसर, बढ़ता बुनियादी ढांचा इंदौर के आर्थिक सुदृढ़ीकरण का एक मजबूत पायदान है। हम चलते हैं ओपन फोरम की ओर और हमारे यहाँ उद्यमियों तक आप अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक पहुँचा सकते हैं। आप जो भी बात करना चाहते हैं, ये ओपन फोरम है। आप कृपया हाथ खड़ा कीजिएगा तो हमारे जो यहाँ पर व्यवस्थापक खड़े हैं वो माइक आप तक पहुँचाएंगे। कृपया एक एक करके हाथ खड़ा कीजिए और माननीय सिद्धार्थ सेठी सर भी आप बात करना चाहेंगे। सबसे पहले शुरुआत सिद्धार्थ सेठी जी से ही कर रहे हैं। मैं बात तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं मॉडरेट ज़रूर करना चाहूँगा। मुझे ये बताया गया है कि करीब 10 मिनट का समय है हमारे पास, तो मैं 4-5 लोगों से अनुरोध करूँगा कि वो अपने सवाल करें। मैं सबसे पहले श्री सुनील चौरड़िया जी से अनुरोध करूँगा। काफ़ी वरिष्ठ हमारे इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर आप कुछ बोलना चाहें सर, प्लीज़। 1 मिनट में बोलूं? ये लेना सर नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको GIS ऑर्गेनाइज करने के लिए। और पिछले कई सालों से हम लोग जुड़े हुए हैं इस तरह के इवेंट्स में, और मध्य प्रदेश ने काफ़ी प्रगति की है। कुछ दिल मांगे मोर हमेशा रहता है, तो कुछ हमारी चीज़ें हैं जो कई समय से पेंडिंग है। आपसे भी चर्चा हुई है, कैलाश जी से भी हुई है कि इंदौर की कनेक्टिविटी को अगर इम्प्रूव कर सकें तो वो एक बहुत ज़रूरी काम है, जिससे IT इंडस्ट्री और बाकी सब उद्योगों को भी फ़ायदा होगा। अभी मैं जब भी फ्लाइट में आते जाते हैं तो आजकल US से जो लोग इंडिया आते हैं वो महाकाल जाना चाहते हैं। अभी मैं उदयपुर से आ रहा था, लोग उदयपुर से 40 लोगों का ग्रुप जो US से आया था वो महाकाल दर्शन करने के लिए आया। तो खाली उद्योगों को नहीं, बाकी पर्यटन को भी बहुत फ़ायदा होगा। अगर इंडिया में 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं सर, और हर स्टेट में 2-2, 3-3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। मध्य प्रदेश में आई विल से ओनली 0.25% इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्योंकि इंदौर अकेला है और हफ्ते में 2 फ्लाइट है सिर्फ। ये बहुत ज़रूरी मांग है हमारी, इस पे सबको मिलकर काम करना चाहिए। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कुछ उद्योगों की कुछ आपदाएं तो दूर करने की कोशिश की है, इसके लिए आपको धन्यवाद। Along with the regions, the focus should be on sectoral development also.
इसमें कुछ कम काम हुआ है, जैसे कि क्लस्टर का डेवलपमेंट। हमारा मध्य भारत भी और मध्य प्रदेश भी काफ़ी पीछे क्लस्टर डेवलपमेंट में। उद्योगों के सस्टेनेंस के लिए और पर्टिकुलरली स्मॉल इंडस्ट्री के सस्टेनेंस के लिए बहुत आवश्यक है कि हम सेक्टरल डेवलपमेंट भी करें। जैसे फर्नीचर का अगर कोई क्लस्टर है तो वहाँ पर सारी इंडस्ट्री उस तरह की आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मध्य प्रदेश की विपुल जनसंख्या को देखते हुए एमएसएमई का विकास भी उचित मॉडल के रूप में हो, ऐसा हम चाहते हैं। एमएसएमई आपने इतनी बड़ी जीआईएस की लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए आप इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि एमएसएमई को लेकर भी इतनी ही बड़ी एक समिट किया जाए ताकि उसके ऊपर आप अच्छी तरह से काम कर सकें। और एमएसएमई को भी इंदौर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा विपुल जनसंख्या होने से अगर एमएसएमई को आप देंगे तो एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अभी इंदौर और उज्जैन में एक प्रतिस्पर्धा सी प्रतीत होती है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो कि दोनों शहरों के विकास में बाधक सिद्ध होगी। अतः इंदौर मेट्रोपॉलिटन या इंदौर क्षेत्र का समावेशी विकास किया जाए, ऐसा आपसे निवेदन है। आज से 10 वर्ष पूर्व एआईएमपी का मैं अध्यक्ष था। आज चेयरमैन मालवा चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से ध्यान आकर्षित करना हूँ। कुछ शाश्वत मुद्दे इंडस्ट्री के, पर्टिकुलरली एमएसएमई के, जैसे भूमि को लीज होल्ड से फ्री होल्ड भूमि में परिवर्तित करना, औद्योगिक क्षेत्र में जमीन पर लगने वाला डबल टैक्सेशन, पड़ोसी राज्यों की भांति स्टाम्प ड्यूटी में कमी। मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, अतः यहाँ के उद्योगों को तटीय राज्यों जैसे गुजरात, तमिलनाडु आदि के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड पर लाने के लिए निर्यात पर लगने वाली फ्रेट में सब्सिडी प्रदान करना, उद्योगों में भवनों को बढ़ा हुआ एफआर देकर मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बनाकर सीमित भूमि का अधिक उपयोग करना। इंस्पेक्टर राज फिर से प्रदेश में दस्तक दे रहा है। बस मैं मुद्दे सारे उठा लूंगा। उस पर कारगर नियम बनाना, ईटीपी और सॉलिड वेस्ट का काम करना। आदरणीय मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये पत्र आप इधर दे देंगे तो आदरणीय हम उद्यमी हैं, उद्यमी नहीं है, कृपया इस ओर भी आप ध्यान देंगे। और अंत में हम सब उद्योगपतियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के समुद्र में डुबकी लगाने के लिए आप हमें सहयोग प्रदान करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय उद्योगपति। धन्यवाद अंकल। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप अपनी बात रखना चाहेंगी? ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं संदीप बड़जात्या नेमावर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से हूँ। सर, हमारे उधर करीब 150 इंडस्ट्रीज है। हम लोग एक फायर स्टेशन की बहुत ज़रूरत है, वहाँ पर बहुत अत्यंत आवश्यक है। और थोड़ा इलेक्ट्रिक का सुधारना चाहते हैं हम लोग। फायर स्टेशन चाहिए हमें सर। नेमावर रोड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, नेमावर रोड पे करीब 160 इंडस्ट्रीज है हम लोगों की। हम लोग प्रेसिडेंट है, तुलसी भैया को सब हमने बोल रखा है, तुलसी भैया ने आपके वहाँ वो भी कर रखा है। हम चाहते हैं एक फायर स्टेशन अर्जेंट बेसिस पे हो जाए हमें। मैं अगला सावन लड्डा जी से अनुरोध करूंगा सर, संक्षेप में अपनी बात रखनी। जी नमस्कार मुख्यमंत्री जी। मैं स्टार्टअप और आईटी इंडस्ट्री से आता हूँ और माननीय सांसद जी और महापौर जी और सभी के सहयोग से स्टार्टअप में काफ़ी अच्छा काम हुआ है इंदौर में और मध्य प्रदेश में। मैं चाहता हूँ कि स्टार्टअप की कोई अच्छी इंटरनेशनल लेवल की हमारी कॉन्फ्रेंस इंदौर में हो, टेक फेस्ट जैसी चीज़ें यहाँ पे हो, क्योंकि आजकल ये बैंगलोर और बड़ी सिटीज़ में है और इंदौर में काफ़ी पोटेंशियल है। हम लोग इंदौर को एज एन आईटी सिटी बना सकते हैं। टॉप 5 में आने की कैपेसिटी रखता है इंदौर आज की तारीख में आईटी और स्टार्टअप के लिए। तो थोड़ा सा इसमें विशेष ध्यान दीजिए स्टार्टअप्स के लिए और आईटी के लिए। और स्पेसिफिकली जो बैंक फंडिंग का आता है, पर उसमें एक्चुअली स्टार्टअप्स को फंडिंग नहीं मिलती है प्रॉपरली बैंक के द्वारा। तो अगर हम कोई कैंप लगा के जो CGTSME की स्कीम्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की आई है, वो हम स्टार्टअप्स को अगर आखिरी लेवल तक बेनिफिट दे पाए तो डेट और इक्विटी का अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। और अगर हम डेट इक्विटी फंड भी अगर दे सकें स्टार्टअप्स के लिए तो अच्छा रहेगा। सावन जी, एक महिला है उधर, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ सर। हेलो सर। दीप्ति हाड़ा जी। नमस्कार सर। परम सम्मानीय मंच, यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मेरा नमस्कार और बैठे सभी वरिष्ठ जन को नमस्कार। सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जो स्लाइड प्रेजेंटेशन यहाँ पे हुआ उस पर स्लाइड 4 पर जो सत्र मेंशन थे
उसमें फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस के लिए तो इसमें सत्र रखा गया है, लेकिन हमारे क्योंकि महापौर जी नवाचार के लिए जाने जाते हैं, इंदौर प्रदेश में सबसे अच्छा शहर है, स्वच्छता में भी है। मैं आपसे ये निवेदन करूंगी कि मेडिकल टूरिज्म में इस दिशा में यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, और क्योंकि आप पर्यटन पर काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन पर कर रहे हैं, स्वच्छता पर काम कर रहे हैं, तो मेडिकल टूरिज्म एक ऐसा विषय है जिसको अगर आगे लाया जाए, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, फार्मा कंपनीज है, इन सब के कॉम्बिनेशन से हम इसमें भी एक नया आयाम पेश कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। आप बोलना चाहेंगे? आप चाहेंगे? हेलो जी, नमस्कार जी, मैं दीपक जयेश शाह। इंदौर के लिए बहुत ही गर्व का विषय है, प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। आदरणीय ये चौथी हेलो जी, बहुत ही इंदौर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। इंदौर में फूड पार्क आ रहा है गौतमपुरा में, जिसमें 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। MOU के लिए साइन करने के लिए हमें 24-25 को आपका समय चाहिए सरकार का, और मध्य प्रदेश सरकार के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। मध्य प्रदेश सरकार इस चीज़ को भुना है। हम इसको, भारत सरकार से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है ये, और इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हम लगभग 15,000 लोगों को रोजगार देने का हमारी नीति है। इसमें सुरेंद्र डाकलिया जी, नरेश मुंदड़े जी, मैं दीपक जयेश शाह जी और हमारी ऐसे अनेकों टीम है। हमें सांसद महोदय जी का बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ है, और इसमें हम भारत सरकार का अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। इसमें GST की छूट है। सपोज करें कि 25 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है तो 25 करोड़ की ही GST की छूट है, और बहुत सारे पैरामीटर्स है, MSME की बहुत सारी छूट से। तो इसमें भारत सरकार ने हमें बहुत सहयोग करा है। हम चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार भी इसमें हमें क्या छूट दे सकती है, MSME से क्या छूट मिल सकती है, उसके लिए हमें आपसे समय चाहिए, और MOU हम करना चाहते हैं। धन्यवाद। मैं अंत में अक्षत चोरडिया जी से बोलूंगा, CII मालवा के चेयरमैन। हेलो, आखिरी बात। हेलो, मैं पालदा से बोल रहा हूँ, प्रमोद जैन। मंत्री जी नमस्कार। पालदा में सड़क और ड्रेनेज की बहुत समस्या है, और वहाँ पर करीब 550 इंडस्ट्रीज है, और काफी समय से हम लोग, मधु भैया को भी बोला है अभी, और महापौर जी को भी बोला है कि सड़क और अपने ड्रेनेज का काम हो। धन्यवाद जी। अक्षत, आखिरी बात आपकी जी। 1 मिनट और दे लो सर। मैं जी सर नमस्कार मुख्यमंत्री जी, बड़ी खुशी का अवसर है कि आज आपके सम्मुख हमें अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। मैं अक्षत चौड़िया, अध्यक्ष CII मालवा जोन, और फार्मा क्षेत्र से संबंधित मेरा बिजनेस है। जैसा कि विदित है, सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश फिनिश फॉर्मुलेशंस में देश में अग्रणी है, टॉप 3 फार्मा एक्सपोर्टर्स में आता है। अगर कुछ फार्मा API और बल ड्रग से संबंधित भी आप इसमें पॉलिसी लाएं, और कुछ सेक्टर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बल ड्रग पार्क सैंक्शन किए हैं 3, अगर MP में कोई बल ड्रग पार्क आ सके वो अगर आप करें, और दूसरा जितने औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें CETP की सुविधा अगर देंगे तो जैसे इंदौर नंबर 1 बनाया सफाई में, उद्योगों को कंप्लायंस में बहुत ईजी होगा। तो मेरा ये 2 आपसे निवेदन है। एक बल ड्रग पार्क भारत सरकार के माध्यम से जो लग रहे हैं पूरे देश भर में, उसमें प्रदेश में कुछ लेकर आएं, और CETP सारे औद्योगिक क्षेत्रों में लगाएं। धन्यवाद। धन्यवाद अक्षत जी। आप एक सेकंड वो बोल दें, फिर आप बोल दीजिए बस। ये आप 2 आखिरी है। प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय मंच। मैं डॉक्टर डेविस जैन, सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया सोपा का चेयरमैन हूं, और प्रेस्टीज ग्रुप का भी चेयरमैन हूं। मेरा एक सिर्फ सुझाव है, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है जो पूरे देश विदेश से हमारे प्रदेश में एक बड़ा निवेश का आमंत्रण हम यहाँ विश्व को दे रहे हैं। मेरा एक सुझाव है, क्या हम मध्य प्रदेश से जो विकसित और वेल एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल हाउसेस, बिजनेस हाउसेस हैं, उनको पार्टनरिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में साथ में प्रस्तुत करते, तो शायद हम बड़े गर्मजोशी से उनको होस्ट
अनदर 100 ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ जुड़ के उनको होस्ट पार्टनरिंग ऑर्गेनाइजेशन घोषित करते, तो वो भी अपना एक काउंटर पार्ट के साथ अपना संवाद बना सकते हैं और उनको इस चीज का पूरा भरोसा दिला सकते हैं कि मध्य प्रदेश में आप आइए और जिस तरीके से हमने हमारे उद्योग और व्यापार को यहाँ पर संचालित कर यहाँ पर हमने अपने प्रोग्रेस करी है, तो ये संभव है कि आप शायद उससे भी अच्छा कर सकेंगे और हमारा पूरा सहयोग आपको एज सन ऑफ द सॉइल हम आपको दे सकेंगे। मध्य प्रदेश एक कृषि आधारित प्रदेश है जिसकी ऑलमोस्ट 78% पॉपुलेशन कृषि पर आधारित है और मैं सोयाबीन एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूं देश के, तो सोयाबीन प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को दुनिया भर में जाना जाता है। लगभग $1 बिलियन का एक्सपोर्ट हम मध्य प्रदेश से यहाँ पर कर रहे हैं और उसे बढ़ावा देने की काफी क्षमता और संभावना है। यही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा आगे का कार्यक्रम आप आगे बढ़ाएं। आप सभी का धन्यवाद और आपके जो भी सुझाव हैं आप लिखित रूप में MPIDC के पास जमा कर सकते हैं और आपकी तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूं मध्य प्रदेश के नवप्रवर्तन के शिल्पकार, विकास के कीर्ति स्तंभ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, नवप्रवर्तन के शिल्पकार और हमारे प्रदेश के सुनियोजित विकास के कीर्ति स्तंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से। क्या कार्यक्रम का नाम क्या दिया? इंदौर संवाद। आज के इस कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ नेता यशस्वी मंत्री श्रीमान कैलाश जी भाई साहब, वरिष्ठ नेता और मंत्री माननीय तुलसी भैया, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, माननीय राज्यसभा सांसद सुश्री कविता बहन, हमारी डॉक्टर है कि नहीं आप डॉक्टर महेंद्र हार्डिया जी है, मिल गई ये मेरे को। वो जब ये चिकित्सा मंत्री थे तो मैं उस समय मेरे मन में हाँ मेरे मन में वही इंप्रेशन है, वही तो थोड़ा सा मेरे को लगा नहीं है तो मान लिया मैंने। और इस अवसर पर माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, सुश्री उषा दीदी, मालिनी भाभी जी, इस अवसर पर हमारे माननीय गोलू भैया, सभी माननीय विधायकगण, सिद्धार्थ भैया, मधु भैया, बड़े भैया हमारे विधायक, इस अवसर पर हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण। मैं ये सोच रहा था जितने अच्छे ढंग से अपने माइक पे विषय रख रहे थे और विषय की चिंता भी कर रहे थे, इधर से अधिकारी भी बात रख रहे हैं, तो अपना इन्वेस्टर समिट का रीजनल स्तर पे से लगा करके ग्लोबल आते आते तक और कोई लाभ मिला नहीं मिला, सब अच्छा भाषण देना सीख गए, ये भी अच्छी बात। आज मेरे को मालूम नहीं, कभी राघवन जी ये रिकॉर्ड भी देखना, जब से आजाद हुआ है अपना देश और मध्य प्रदेश का गठन हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम कि कोई मुख्यमंत्री इतने भाषण भी सुन रहा सबके अपने विषय को इतने अच्छे ढंग से, लेकिन इसकी सकारात्मकता भाव देख रहे हैं, नकारात्मकता नहीं। हमारी कठिनाई और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, और बोलने के साथ उसका समाधान भी आना चाहिए। और ये जब हम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एक तरह से रखते हैं कि हमारी बात भी आ जाए, और अल्टीमेटली ये बात तो सही है कि सरकार के साथ जुड़ करके व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारे उद्योग व्यवसाय की गति प्रगति होती, और स्वाभाविक रूप से उसकी दिशा लेने के लिए ये स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता है। जैसे किसी भी स्थान पर अगर हम आज के भाव में समझेंगे तो व्यापार व्यवसाय जहां जहां भी बढ़ रहा है, उस बढ़ने में जैसे खेत को अनुकूल बना करके ही फसल ली जा सकती है, ऐसी प्रकार से उद्योग व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सब प्रकार की अनुकूलता में एक बड़ी अनुकूलता उसके प्रति शासन की
कोई प्रतिकूलता नहीं चाहिए। शासन की उसको शासन का संरक्षण चाहिए। जैसे कला, संस्कृति, साहित्य ये सब एक तरह से शासन आधारित होते हैं, इसी प्रकार से उद्योग व्यवसाय भी उसी का हिस्सा। अपन इसको उल्टे वे में भी देख लो। आज हमारे सबके सामने अपने कई सारे विषय आए होंगे, मुझे विषय से दूर नहीं जाना है, विषय के अंदर ही रहना, लेकिन कुछ तो बातें दिखती है जो सामने देख करके बात करेंगे। मैं इस मामले में, कई मामले में यद्यपि मैं बोलने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा वो समसामयिक है कि पता नहीं, लेकिन जितने बड़े बड़े देश है जो उद्योगों में आगे बढ़े, माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से, जिसको कहते हैं कि आंखों से काजल चुराना, अपने व्यापार व्यवसाय की व्यवस्थाओं के आधार पर भारत की पहचान भी बनाए रखना, और इतने युद्ध के अंदर और युद्ध के पास पहुंचे हुए देशों के साथ भी तलवार की धार पे चलते हुए सबसे अपने अपने ढंग से रिश्ते भी बनाए रखना है। किसको किसको कैसी कैसी आश्चर्य की बात। अपन केवल एक उदाहरण पकड़ लें, रूस, यूक्रेन, अमेरिका। अब आप बताइए, अमेरिका यूक्रेन से बात नहीं कर रहा है, रसिया से बात कर रहा है, रसिया यूक्रेन से बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये सब कोई से बात करे नहीं करे, लेकिन ये सब मोदी जी से बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। वो भी दुनिया का सबसे सक्षम देश, वो देश जिसने कुछ दिन पहले तक बाइडेन का, पुतिन का बजाय एक तरफा प्रेम था जेलेंस्की के प्रति, यूक्रेन के प्रति, अब ये अपने ढंग से उसका समाधान निकाल रहे हैं। निकालना कोई बुरा नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे इस युद्ध के माहौल में आज पूरे दुनिया के अंदर हमारे देश का दुर्भाग्य ये था। मैं मान के चलता हूं, आज वो अतीत की बात हो सकती होगी, लेकिन आज भी इस बात को कोई संकोच नहीं है कि हमारे देश का जो ये 750-800 साल का समय गया, हम मालवा वाले तो और भाग्यशाली हैं। शिवाजी महाराज के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनके कारण से ये हमारे अपने बाजीराव पेशवा जी के बाद से मालवा से लगे राजस्थान तक का पूरा अपना वर्तमान के दौर में जो समृद्धि है, उसमें बहुत बड़ा योगदान अपनी उस अलख पताकाओं का है, जिस भरोसे से हमारे पूर्वजों ने अपने बलबूते पर व्यापार व्यवसाय के लिए अपनी अनुकूलता बनाई। तो आज अपने रेगिस्तान के इलाके से, छोटे छोटे जिले से निकल करके भी वहाँ से राजस्थान के लोग, अपना मारवाड़ी लोग, हमारे अपने मालवा के लोग, और माल जाए वही तो मालवा, बिना माल का काहे का मालवा। और इसे में मालवा में समझदार तो होना ही चाहिए। जो हो गया वो तो नहीं है, वो बताओ ये इसमें दे रहो, उसमें दे रहो, लाओ जरा, कहाँ दे रहो कि नहीं दे रहो, ये अवसर का भी लाभ लेते आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता मैं जल्दी आ गया। आज हमारी जितनी सारी पॉलिसी, पहले आप पढ़ लो फिर तो हमारी परीक्षा लो। आपने प्रश्न पत्र लंबा चौड़ा पकड़ा दिया और हमारी परीक्षा ले रहे हो। मैं ये लाइन से देख रहा था। अब आपके ये उत्तर देने की स्थिति में थोड़े थोड़े कोशिश करता हूं। हमारी जो एमएसएमई की नई पॉलिसी आई, आप कल्पना कर लो 52% तक हम सब प्रकार की अनुकूलता की उसमें सब्सिडी देने वाले हैं। और गुंजाइश कैसी ले रहे हैं, 10 करोड़ से लेकर ऊपर का निवेश हमारे खास करके ऐसे जिले जो पिछड़े हैं, लेकिन हमने उसको चलती पॉलिसी में कैबिनेट के अंदर संशोधन करा दिया कि ये 10 करोड़ भी ज्यादा है, लेकिन आप 2.5 करोड़ से ऊपर का कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको भी लाभ दोगे, उसकी फैक्ट्री का भी महत्व है। अर्थात छोटी से छोटी जो निवेशक अपने साथ जुड़ रहा है उसके हितों का ध्यान रखते हुए। अब कुछ प्रैक्टिकल बात भी है, जैसे उदाहरण के लिए अगर अपने पास मालवा के आसपास में तो 10-5 करोड़ बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर कोई अलीराजपुर में इंडस्ट्री डालेगा तो अगर वो 2.5-3 करोड़ की भी डालता है, हमारे लिए वो भी बड़ी बात है। अगर वो सेंधवा में दाल मिल का कारखाना खोल रहा है तो दाल मिल के कारखाने में 4 करोड़ रुपए लग रहा है, तो 4 करोड़ वाले को भी तो लाभ देना पड़ेगा। वो एमएसएमई में नहीं आएगा क्या? तो केवल बड़े के अंदर ही बड़े में भरे में कब तक भरोगे, छोटे को भी खड़ा करो। ये भी तो भाव होना चाहिए कि नहीं होना। इसलिए सब सेक्टर का ध्यान देना, बड़े से बड़े आदमी का भी ध्यान रखना और छोटे से छोटे का ध्यान रखना। आज छोटा है कल बड़ा बनेगा, इसकी तो आवश्यकता है। इसलिए वो सारी बातें को जोड़ा है जिसमें सब प्रकार से लाभ दे रहे हैं। कैपिटल में भी दे रहे हैं,
बाकी भी सरकार की व्यवस्था में भी दे रहे हैं। तो ये लाइन से एमएसएमई के लिए तो आज माननीय कैलाश जी भाई साहब ने सही कहा है, एमएसएमई की हमारी पॉलिसी आ गई। माननीय अध्यक्ष जी मालवा चैम्बर है ना, उसी के अध्यक्ष है ना, तो आप एक बार पॉलिसी पढ़ करके फिर इसमें आप और बताना, जो छूटा है वो भी जोड़ देंगे, आप चिंता मत करना, इसमें कोई देर नहीं रहेगी। लेकिन मुझे ऐसा पूरा भरोसा है कि वो सारी चीज उसमें आ जाएगी। हाँ, वो भी करने वाले एमएसएमई का। तो अभी मैं इस पे विस्तार से थोड़ी थोड़ी बात करते जा रहा हूं। अभी आपने देखा कि हमने समग्र रूप से सभी चीजों को जोड़ते हुए एक अनुकूल माहौल बनाने के लिए एक ही स्थान पर टूरिज्म की बात भी हो रही, एमएसएमई की भी हो रही, हेवी इंडस्ट्री की भी हो रही, फार्मा की भी हो रही, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी हो रही, ड्रोन की भी हो रही, चिप और केमिस्ट्री जो हमारा सेमीकंडक्टर की भी हो रही। क्योंकि एक बार सरकार के सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर के कुल मिलाकर के हमने वो सारी बात करते करते उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के अंदर की संकल्प शक्ति दिखाने का प्रयास किया। वो दिन दिन भर किया कि भाई आज दिन भर और दूसरा कोई काम नहीं, कोई भूमि पूजन नहीं, कोई लोकार्पण नहीं, और ऐसे ही सामान्य रूप से बैठ करके व्यापार व्यवसाय के लिए पूरे संभाग में करते करते आए। और उसका परिणाम ये निकला कि बहुत सारे सुझावों का हमारे पास संकलन भी हो गया और अपनी कठिनाई भी समझते गए। तो कुल मिलाकर के ये जो अब हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही, तो उसमें ये सारी बात आ जाएगी। उसमें फ्री होल्ड प्लाट की बात भी आपने कही, तो फ्री होल्ड प्लाट जो ऑलरेडी इंडस्ट्रियल बेल्ट में वो भी है, लेकिन ये भी मान के चलो, योगेश यहाँ बैठे हैं, अब योगेश चिंता मत करना, हमने केवल तुम्हारे लिए नहीं सबके लिए गुंजाइश दे रहे हैं। आप भी 1500 की बड़ी अपनी इंडस्ट्रियल बेल्ट काट दो, उसमें भी वो सब लाभ देंगे जो हमारा सरकारी इंडस्ट्रियल बेल्ट में प्लाट काट करके मिलता है। और इतना ही नहीं, लेबर को रुकने के लिए अगर वो आवास बनाना है तो आवास भी देंगे, और आवास के ऊपर सरकार के द्वारा जो फाइनेंस का लाभ मिलता वो भी मिलेगा। आप अपने बलबूते पर बड़ी इंडस्ट्री अपनी लैंड खरीद के डालना चाह रहे हो तो उस लैंड के ऊपर भी वो सारे प्रॉफिट देंगे, जिसके आधार पे आपको ग्रोथ मिले। कुल मिलाकर के हमारे अपने एक एक निवेशक, और ये एक नहीं सभी सेक्टर में बढ़ते बढ़ते, अब जैसे मुझे बताया गया कि आपने नेमावर में फायर स्टेशन की बात कही, तो माननीय मंत्री जी यहाँ है ही सही, नेमावर में बिल्कुल एक क्या पूरा फायर फाइटर जितने आप चाहोगे लगवाएंगे, इंडस्ट्री तो लगाओ आप, निश्चित रूप से इसका प्लान करेंगे, चिंता मत करना, ये आपका प्लान भी इसमें है। स्टार्टअप के दृष्टि से भी हमारी बहुत अच्छी पॉलिसी आई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात आपने कही, अब मैं आपको बताता हूं, कल या परसों का समाचार पत्र आप देख लेना, इंदौर उज्जैन की कंपटीशन की बात आई है। कहां से आ गई कंपटीशन, मेरे तो समझ में नहीं आ रही। इंदौर उज्जैन तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के आधार पर, और इकट्ठा भी कैसे करना, आप कल्पना करना, बेस क्या रहता है, हमारा बेस उद्योग है, इसलिए उद्योग आधारित जिलों को कैसे मिलाना है। मोटे तौर पर मैं एक आउटलाइन आपको बताता हूं। आउटलाइन में पीथमपुर अर्थात धार जिला, पीथमपुर से शुरू करते हुए पूरा इंदौर, इधर पास में चले जाओ तो देवास का इंडस्ट्रियल बेल्ट, तो देवास जिला पूरा हो गया। मक्सी का इंडस्ट्रियल बेल्ट तो शाजापुर आ गया, और शाजापुर से हमारा घटिया का बांध का इंडस्ट्रियल बेल्ट वो उज्जैन आ गया, और वहां से नागदा का इंडस्ट्रियल बेल्ट, ये पूरा बड़नगर के यहां से होते हुए लगभग 10,000 किलोमीटर का पूरा एरिया एक बना रहा। बताओ इससे बाहर कहां जाने वाले, ये सारा इंडस्ट्रियल बेल्ट पूरा एक करेंगे। अब इसके आधार पर आप देखो क्या इंदौर उज्जैन की कनेक्टिविटी की बात आई, इंदौर उज्जैन की कनेक्टिविटी के रोड कितने हैं 4 लेन के, तीनों भैया कितने रोड हैं? मैं 5 बता रहा हूं तुमको, देखो आप अब लाइन से देखो, केवल इंदौर उज्जैन के 5 रोड। आप देवास से सीधा आ रहा जा रहा हो, 1 अमलतास के पास से आ रहा हो, 2 उज्जैन इंदौर वर्तमान का 4 लेन अब 6 लेन बन रहा, जिसपे काम चालू हो गए, कितने हो गए? और ग्रीन फील्ड का टेंडर कर दिया, कितना हो गए? और बदनावर से आप कहां से जा रहे हो, बंडेगर तक पहुंचा रहा हो नहीं पहुंचा रहा हूं, तो कितने रोड हो गए आपके? 5 रोड आज की स्थिति में। और छठा अगर आप कोशिश करोगे तो देपालपुर से नागदा वाला, जब हम ये पूरा एरिया लाएंगे तो छठा भी आएगा कि नहीं आएगा। तो एक शहर से दूसरे शहर में, और एवरेज हमारी नगर निगम, अब आप देखो एक दूसरे के आसपास से, देवास नगर निगम उज्जैन इंदौर के बीच में केवल 40 किलोमीटर का अंतर,
तो कारपोरेशन भी ऐसे ही है। हवाई पट्टियां हमारे पास 3 आ रही है, हेलीपैड की तो अभी आप हर तहसील में गिनती कर लो। आज की एविएशन पॉलिसी के आधार पर हर 45 किलोमीटर में एक अपना पक्का हेलीपैड, 150 किलोमीटर में हवाई अड्डा, ये प्रदेश के लेवल पे बात कर रहे हैं एविएशन की पॉलिसी। और आपने एविएशन के आधार पर जो हमारे लिए अभी बात कही, हमने तो कहा कि हमारी पर फ्लाइट अगर अंतर्देशीय नए रूट पे आएगी, मैं आपके लिए बताना चाहूंगा, तो पर फ्लाइट के लिए कोई भी कंपनी वाले आएगा तो 7.5 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा कि नई फ्लाइट चालू करो, सरकार आपको इंसेंटिव दे रही ताकि कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई आएगा तो 10 लाख रुपया प्रति फ्लाइट वो भी हम अनुदान देने वाले हैं। कुल मिलाकर के अपने लेवल पर अपने अंदर राज्य को चलाने के लिए आज की स्थिति में हमारे पास सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, ये पूरे बेल्ट में रेगुलर हमारा अपना जो वेंचुरा के तरह का जो हमारा एविएशन का खुद का प्लेन है, रोज अपना आवागमन कर रहा है। और आने वाले समय में एक टेंडर और फ्लोट कर रहे हैं जिसके आधार पर इंदौर, उज्जैन और ओंकारेश्वर, ये तो हेलीकॉप्टर हम तुरंत चालू करने वाले 15-20 दिन में हो सकता है आपको जाने आने का मौका मिल जाएगा। और ये केवल ये नहीं, ऐसे प्रदेश के कई सारे स्थानों पर अलग अलग रूट निकाल करके कुल मिलाकर के अब आप इसकी कल्पना करो। मेडिकल टूरिज्म की बात कही, मेडिकल टूरिज्म में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं अंदाज लगा लो। आज की स्थिति में पिछला 1 साल पूरे देश में एकमात्र हमारा ये अपना मध्य प्रदेश है जिसने अपनी एयर एम्बुलेंस चालू कर ली, जिसके भरोसे से हमारे आयुष्मानधारी जितने भी बीमार है अगर उनको उन्नत अस्पताल पे पहुंचाना है, अगर हवाई पट्टी है तो प्लेन आएगा, 1 पैसा उसका नहीं लग रहा है, सारा पैसा सरकार दे रही। और अगर कच्चा स्थान है हेलीकॉप्टर उतारना तो हमने हेलीकॉप्टर के एयर एम्बुलेंस भी बना दी। उसके आधार पर अभी पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 600-700 फ्लाइट्स ने अलग अलग अपना काम किया है। लेकिन इतना बड़ा स्टेट है, इस पे हम और आगे बढ़ रहे हैं। टूरिज्म के लिए, मेडिकल टूरिज्म के लिए जो जमीन चाहिए अलग से, आज मेडिकल पॉलिसी की भाई साहब ने बात कही है कि अभी हमने प्लान किया तो थोड़ा, अब ये अलग बात है कि सरकार के लेवल पे थोड़ा सरकार के अधिकारियों को भी सोचना पड़ता है। तो उन्होंने क्या 500 करोड़ का आएगा तो उसको लाभ देंगे, 250 करोड़ का आएगा तो लाभ देंगे। हमने कहा 250-500 कौन लगा रहा भैया अभी यार, ये 50 और 100 करोड़ वाले को भी लाओ, हमारे लिए क्या तकलीफ है। तो ये आना चाहिए कि ना आना चाहिए, तो हमने और संशोधन कर दिया। इसके अलावा यहाँ तो छोड़ो, हमने तो कहा कि हम आपको तो बुला ही रहे हैं लेकिन हरिद्वार की तर्ज पे टेम्परेरी खर्चा बार बार उज्जैन में क्यों करना चाहिए। तो हमने उज्जैन के अंदर भी परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए सीमस्त की पूरी लैंड का 2300 हेक्टेयर का प्लान बना दिया कि स्थायी रूप से भी वहां पे अपने बड़े बड़े आश्रम बनाए और आपके माध्यम से भी आपकी अपनी समाजों की धर्मशाला बनाना हो, अन्न क्षेत्र बनाना हो, स्कूल, कॉलेज जो बनाना वो बना करके ये 11 साल 10 महीने आप चलाओ और 2 महीने के लिए सीमस्त को सबको मिल जाएंगे। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हरिद्वार के तर्ज पे अपने यहाँ भी आनंद आना चाहिए। ये सारी चीजों को खड़ा करने के पीछे भाव ये है कि परमार्थ का काम भी हो तो अच्छे से होना चाहिए, सरकार का काम भी हो तो और अच्छे से होना चाहिए। इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर पूरे प्रदेश के अंदर ये जितनी प्रकार की बातें आपने कही, मुझे लगता है वो अलग से बोलने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप मान के चलो इसके अलावा भी कोई सुझाव है तो हम अपने पूरे मनोमस्तिष्क से खुले मन से सबको स्वीकार कर रहे हैं और ये संवादों से हल हो सकता है। इस प्रकार से परमात्मा चाहेगा केवल उज्जैन इंदौर का ये 5 जिलों का मिलाकर मास्टर प्लान मेट्रोपॉलिटन नहीं बना रहे हैं। और इसके अंदर भी विशेषता क्या है कि बड़ा इसको हम आमतौर पर मेट्रोपॉलिटन जो दूसरे टाइप के हैं उसमें जरूरत से ज्यादा बंधन लगा देते हैं। तो जब बंधन लगा देते तो डेवलपमेंट रुक जाता है, खुलापन का मामला करते हैं। उसके आधार पर इंडस्ट्रियल बेल्ट जब हमने पकड़ ली है, इसके बाद अंदर का कमर्शियल, रेसिडेंशियल बहुत बड़ा बेल्ट, अब 10,000 किलोमीटर किसको कहते हैं। लेकिन इसके अंदर भी हमारे सरकार के द्वारा क्या करने वाले हैं, सरकार के द्वारा मूल रूप से आने जाने के मार्ग में रेल का मार्ग हो सकता है, सड़क का मार्ग हो सकता है और बाकी चीजों के अलावा जो मूलभूत सुविधाएं जो देने के, पीने के पानी की व्यवस्था है, इलेक्ट्रिक लाइन की व्यवस्था है, हमारे सीवर की व्यवस्था है, इसके बाद सब कुछ आप पे छोड़ देंगे। आज ही हमने अपनी नई आवास नीति वाली निजी निवेश की पॉलिसी बनाई। अब आमतौर पर जैसे प्राधिकरण कॉलोनी बड़ी बनाता है, बड़ी स्कीम अनाउंस करता है, ये स्कीम के पावर भी हमने प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। आप बड़ी स्कीम बनाइए,
500 बीघा की, 1000 बीघा की, कोई परेशानी नहीं। उसमें एक तरह से सब बातों को प्लान कर लो। इंडस्ट्री भी बना सकते हो, रेसिडेंशियल भी बना सकते हो, कमर्शियल भी रख सकते हो। उसी में सभी प्रकार की आपकी हेल्थ की, एजुकेशन की सारी चीजों को जोड़ो और उसमें सरकार आपको पूरा बड़ा कंपोजिट प्लान बनाने के लिए, अगर गवर्नमेंट लैंड उसके अंदर आती है तो गवर्नमेंट लैंड भी आपको दे देंगे, और अगर निजी जमीन आती है और कोई कारण से 19-20 कोई मामला रहता है तो कलेक्टर के माध्यम से संवाद करने के लिए वो भी सरकारी व्यवस्था रहेगी, ताकि कंपोजिट प्लान बने। कंपोजिट प्लान बना करके जब ये हम बड़ी बड़ी प्लान लेकर आएंगे तो भविष्य में ये जो अभी अपने को जो कठिनाई आती उससे बाहर आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं फूड पार्क की बात कही, और जब आपने कहा क्या पालदा, तो महापौर जी अब आपने छेड़ दी। वैसे मेरे को बोलना नहीं चाहिए, पुरानी इंडस्ट्री थी, लेकिन पुरानी इंडस्ट्रियों में भी हम ढूंढ ढूंढ के सबको ये सारी कठिनाइयां हल कर रहे हैं। आने वाले समय में इनको जरूर पालदा का टेंडर लग गए हैं और बहुत जल्दी पालदा का भी लाभ मिलने वाला है। आपके लिए सड़क भी हो जाएगी, पानी भी हो जाएगा। लेकिन मुझे आज ये सुनने नहीं आया था, मुझे अच्छा लगता कि आप कहते मैं 2 इंडस्ट्री को नहीं डाल रहा तो और मजा आता। ऐसा बोलने के लिए आनंद चाहिए, इस माहौल के लिए हम आए। हम जो आए ये रोते रहेंगे, रोने वाले। अब गया जमाना, एक इंडस्ट्री से 2 लगाना, 2 है तो 4 लगाना, इस प्रदेश में तो देश में कहीं लगाना, देश में तो विदेश में लगाना। अरे हम सब अपने प्रदेश में भी क्यों नहीं बनना चाहिए? हम कितने बड़े बड़े नाम है दुनिया भर वालों के। मजा तो तब आएगा, इंदौर से जाके आदमी 100 देश में काम कर रहा तो अपने भी छाती फूलेगी, हाँ ये है हमारा मध्य प्रदेश और ये है मालवा। कितना आनंद आना चाहिए। अपने यहाँ ये इस बात की कहाँ कमी है? अरे मालवा और इंदौर, उज्जैन तो वो धरती है जहां का 1 रुपया 100 रुपये में चलता तो मजा आता है। नहीं तो काहे के अपने जीवन में, जिंदगी में व्यापार व्यवसाय करा। आज के अवसर पर इतना कहना पर्याप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आज के आयोजन की याद आपके मानस पर सदैव चिरजीवी रहे, इस हेतु आपको एक छोटा सा स्मृति भेंट हम भेंट करने जा रहे हैं और उसके लिए आमंत्रित कर रही हूं मैं प्लास्ट पैक फोरम के अध्यक्ष सचिन बंसल जी, योगेश मेहता जी, प्रकाश जैन जी और व्यापारी प्रकोष्ठ के हेमंत खंडेलवाल जी। यह हमारा जिस क्रांति का आपने शंखनाद किया है वो ही शंख आपको स्मृति स्वरूप प्रतीकात्मक रूप से दिया जा रहा है। धीरज खंडेलवाल जी को भी मैं आमंत्रित कर रही हूँ, कृपया धीरज खंडेलवाल जी मंच पर आए, इस सत्कार्य में सहयोग प्रदान करें। धीरज खंडेलवाल जी व्यापारी प्रकोष्ठ के। और इसमें गणेश जी विघ्नहर्ता मंगलकर्ता की प्रतिकृति है। और आपने जो नई पॉलिसियां, 2 दर्जन से अधिक पॉलिसियां हमारे प्रदेश की समृद्धता के लिए बनाई है, उन पॉलिसियों के लिए भी आपका शॉल के माध्यम से हमारे ये सभी सम्मानित जन अभिनंदन करने जा रहे हैं। धीरज खंडेलवाल जी, सचिन बंसल जी, योगेश मेहता जी, प्रकाश जैन जी। और हमारा कार्यक्रम अंतिम सोपान पर है और अंतिम सोपान पर आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ पीथमपुर औद्योगिक संघ के अध्यक्ष गौतम कोठारी जी को कि कृपया आगे आएं और आभार व्यक्त करें। औद्योगिक विकास की राह सजी, नव दृष्टि से नव ज्योत जली, हर गली हर शहर हर द्वारे सपने साकार हुए उजियारे। संकल्प लिए जो ठान लिया, अब अवसर को पहचान लिया, श्रम और संकल्प की धार से बढ़े प्रदेश उन्नति के द्वार से। नई उड़ान नया विश्वास, मध्य प्रदेश की नई तलाश, डॉक्टर मोहन श्रम के प्रतीक, आपका यश बढ़ाए प्रदेश की रीत। सम्माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और मनस्वी मुख्यमंत्री जी, मंत्रीद्वय और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित मंच और समादरणीय सदन, मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इंदौर आकर यहाँ के उद्योगपतियों से संवाद किया और संवाद के साथ उन्होंने जो स्थितियां परिस्थितियां बताई उससे ये हमें विश्वास हो गया और हमारा विश्वास दृढ़ हुआ है कि यह प्रदेश
एक विकसित। जहां सोच बड़ी वहीं उड़ान नई। 5,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स, 50,000 से ज्यादा रोजगार, 72 इंक्यूबेटर, हर कदम पर सफलता की गारंटी। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश। स्टार्टअप्स को बढ़ाने का सही मौका। महिला उद्यमियों के 47% स्टार्टअप्स। सपनों को पंख दें, आगे बढ़ें। आपका आइडिया, आपकी पहचान। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में मिलिए उद्योग जगत के दिग्गजों से। भोपाल में 24 और 25 फरवरी को।